So today we will discuss potential due to a cylinder. Potential due to a charged cylinder. So this is our topic. Potential due to a charged cylinder. Potential due to a charged cylinder, or the cylinder may be conducting or non-conducting. So first we will try for hollow. Clear? So potential due to a charged cylinder. This is our topic. This is a very interesting topic. Clear? So first of consider the case of cylinder is hollow. Cylinder is hollow. Cylinder is hollow. So what? इसमें डाल दो बेटा. So this is your hollow cylinder. Hollow cylinder. So lambda is the charge density. Lambda is the charge density. And we have to find electric field as a function of potential as a function of R. Means V outside find करना है बेटे, V surface find करना है on the surface and V inside. Plus you have to find potential outside the cylinder, potential on the surface of the cylinder, and potential inside the cylinder. So first we will find potential outside. So you potential outside. This is your potential or V out. So what? So what? Potential difference क्या होता है बाबू? Work done in bringing a charge from infinite to a point in the electric field. Clear? Work done in bringing a charge from infinite to a point in the electric field is equal to the potential energy ना, यानी potential क्या होगा बाबू? Infinite से किसी charge को electric field में लाने में the work you are doing is equal to the potential energy. Clear? This is our definition. So what? V out find करना बेटे. So you know V is equal to integration E dot dr infinite to R. Means work done in bringing a charge from infinite to a point in the electric field. So this is the definition of what? Electric potential. In fact, this is the potential difference. Which is equal to VR minus V infinite is equal to minus infinity to R E dot dr. Since your reference is infinite, so what? V infinite is equal to 0. So what? VR minus 0 is equal to minus infinite to R E dot dr. Clear? So actually your potential is the potential difference. Your potential is the potential difference. But one of them is 0. So what? 0 किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे, the result will be the same number ना. Clear? The same number. चलिए. So देखो बाबू. So this is what? VR minus 0 is equal to VR equal to minus infinity to R E dot dr. And this is the potential at a point. Potential at a point. मतलब कि सबका डेफिनेशन यही है. अभी तक हमने पढ़ा था सिलेंडर स्फीयर पढ़ा था, पॉइंट चार्ज पढ़ा था. सबके लिए यही लिया था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए point in electric field is the potential. Clear? But for cylinder case is different. This is not valid for cylinder. Not valid for cylinder. So I will prove this why this is not valid for cylinder. Clear? लिखो. Clear? Proof हो जाएगा cylinder के equal valid. This definition is not valid for cylinder. इस cylinder के लिए यूज नहीं है. Clear? Not applicable. Clear? There is some other rule for cylinder. करो. कर लिया बाबू. तो कर लिया बेटे. Done. Are you done? Good. So clear हुआ बाबू. So this definition for potential is not valid for solid cylinder or hollow cylinder. There is some other approach or rule. So we'll discuss this.
this is your cylinder. So I am proving why the definition is wrong or not valid for this. Clear? I am proving that. So this is a cylinder. This is a cylinder, and the radius of this cylinder is r. Clear? So lambda is the charge density. So electric field at any point, so electric field at a point P at a distance r from the center ER is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. This is electric field at any point which is outside, and electric field inside is 0. Electric field inside is 0. E inside is 0. Clear? And this is the outside. This is the outside, and you know this is the point, and this is electric field at point P, and the work is to find potential at point P. Potential at point P. So according to your definition, जो ट्रेडिशन है तुम्हारा वर्क डन करेंगे चार्ज फ्रो इनफाइनाइट टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अप्लाई करते हुए क्या होता है. So V is equal to minus infinity to R E dot dr. ये definition है ना, डाटा के जब आंसर चला रहा है, हाँ. So V is equal to minus infinity to R E dot dr. क्लियर करो इससे होगा क्या. So Babu, if charge is positive, so E will be in this direction and dr will be in this direction. That is negative sign. Again, and in between there is होगा क्या, dr will be negative. dr negative होगा, and direction dr क्या है, इधर है, इलेक्ट्रिक का इधर है, क्या आ जाएगा यहाँ, दो माइनस साइन आएगा, एक तो cos 180 का माइनस साइन है और इसका क्या होगा, दे कैंसिल आउट ना, दे कैंसिल आउट. इलेक्ट्रिक क्या होगा, माइनस यह हो जाएगा E dr. क्लियर? E dr सिंपली और इनफाइनाइट टू r. इधर ओके. ये कैसे हुआ, बात समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? अरे बकोगे कुछ? So infinite to r e dr, which is equal to minus infinity to r, and E is equal to, and this point is outside, so we will apply this formula, lambda is equal to 2 pi epsilon naught r dr. Clear? This is equal to V is equal to minus and lambda upon 2 pi epsilon naught कॉमन ले लो बाबू, तो बचेगा क्या, इनफाइनाइट टू r dr upon r. So what, you know integration 1 by x dx is equal to log of x, because differentiation of log of x upon dx is equal to 1 upon x. So differentiation and integration are reverse of each other ना. So इसका डिफरेंशिएशन हो, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा. क्लियर? सो व्हाट, दिस इज, तो पुट करो, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r है, dr अपॉन r का log r हो जाएगा बाबू. तो होगा v इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ऑफ r 1 अपॉन r इनफाइनाइट टू r, which is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught r and 1 upon r minus 1 upon infinite, and this is equal to, so v is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught. Oh, sorry, log of r. So what? Minus lambda upon 2 pi epsilon naught log of r minus log of infinity ना, माइनस में मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, lambda upon 2 pi epsilon naught r log of infinite minus log of r. इधर हो गए. तो लिखो फिर आगे करवाता हूँ. तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P. This is the potential at point. According to this may be wrong or right. I am not saying this is the right answer. मैं प्रूफ कर रहा हूँ कुछ अलग, ये रूल तुम्हारा वैलिड नहीं है. दिस इज नॉट वैलिड फॉर सिलेंडर. क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो अभी क्लियर हो जाएगा. पहले लिखो. कर लिया बेटे? डन. सीरियस करो. गुड. So this is your potential at point P. So this is the potential at point P. So let's play with that equation. So V is equal to lambda upon 2 pi epsilon of r log of infinity minus log of r. You know log of infinity is equal to infinity. Log infinity हमेशा infinity होता है. क्लियर? log infinity हमेशा infinity होता है. So log infinity क्या होगा? Infinity होगा, यानी कि this is very very large, as you can assume, very very large. But this is finite ना, this is
So this guy is very large and this is finite, so that difference will be very large na. So in comparison to this one goes to 0 na, this one goes to 0. So potential at point PV is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught log of infinite. ये होगा ना. This is potential at infinite. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं V r minus V infinite. यही है ना. इसको खोलोगे तो क्या होगा, ये हो गया V infinite और ये हो गया VR. This is V infinite and VR. So in comparison to V infinite, VR is 0 ना, ये बहुत छोटा है. VR potential at this point is very small and potential infinite is very large. तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ रहे या यहाँ रहे और यहाँ रहे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, log of infinity ही तो आ रहा है ना. If you are taking reference as infinity, मान लो 0.1 मीटर पर है या 0.2 मीटर पर है या 0.3 मीटर पे, दिस इज इनफाइनाइट का डेफिनेशन. अगर तुमने लिया इन्फिनिटी टू पॉइंट p इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला तो हमेशा लागू होगा ना, हमेशा लागू होगा. और द प्रोसीजर इज यू हैव टू चूज योर रेफरेंस वेयर योर पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0, पोटेंशियल इज 0. अब तुमने ऐसा रेफरेंस लिया जहां पर पोटेंशियल क्या है बेटा, इनफाइनाइट है, दैट इज वेरी लार्ज, यानी सारे अदर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वो बहुत बड़ा है. हमारा कांसेप्ट क्या है, यू हैव टू चूज योर रेफरेंस वेयर पोटेंशियल इज 0 बट हियर द पोटेंशियल इज नॉट 0. और पोटेंशियल 0 होने का कांसेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल इनफाइनाइट को क्यों बोला है कि मैंने बोला था कि यू हैव टू चूज योर आर इज इक्वल टू टेकन टू बी 0 और इनफाइनाइट, यानी कि रेफरेंस जो होता है हमेशा इनफाइनाइट होता है या आर इज इक्वल टू 0 होता है, आर इक्वल टू इनफाइनाइट होता है. कैसे चूज करते हैं, हाउ कैन यू चूज योर रेफरेंस, कैसे डिसाइड करोगे ये रेफरेंस है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे. रेफरेंस का कांसेप्ट क्या होता है, योर पोटेंशियल शुड बी 0 और पोटेंशियल 0 कब होगा, when there is no interaction between the particle ना, when there is no interaction between the particle तभी पोटेंशियल 0 होगा. पोटेंशियल 0 कब होगा, जब इंटरेक्शन नहीं होगा. इसका मतलब होगा फोर्स इज द फंक्शन ऑफ r, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ r. मान लो k r है और एक फोर्स दूसरा f r इक्वल टू k r k अपॉन r है. अब इसके केस में क्या होगा, पोटेंशियल 0 कब होगा, when there is no any interaction. मान लो कि यहाँ पार्टिकल है बाबू a और यहाँ पार्टिकल है b. So if there is interaction between the particle, there is a potential energy because potential energy is due to interaction ना. So अगर interaction होगा तो potential energy होगा. If there is no any interaction, there is no any potential energy. That's good. So potential energy 0 कब होगा, जब दोनों पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन नहीं होगा. फोर्स इंटरेक्शन मतलब फोर्स, दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स 0 होगा. So दो केस लिया, योर फोर्स इज द फंक्शन, यानी फोर्स इज इक्वल टू k r, k इज सम कांस्टेंट, और दूसरा फोर्स है f इक्वल टू k अपॉन r. तो इसके केस में क्या होगा, r 0 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा 0, यानी इसके केस में रेफरेंस क्या होगा तुम r इक्वल टू 0, क्योंकि जब r 0 हो जाएगा तो द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल गोज टू 0, तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0. लेकिन अगर f इक्वल टू 1 अपॉन k अपॉन r है, इसके केस में r क्या होगा, इनफाइनाइट. सो व्हेन r गोज टू इंफिनिटी देन इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल गोज टू 0, सो पोटेंशियल गोज टू 0. सो देखो कूलॉम्ब, अब देखो हम क्या बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होता है, और कूलॉम्ब फोर्स ये Fg हो गया, Fc भी क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होता है. सो दे आर 1 अपॉन r स्क्वायर क्या, यानी कि F0 कब होगा, व्हेन r गोज टू इनफाइनाइट. दोनों केस में होगा कि नहीं. तो जब भी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हो वहां पर क्या लेते हो रेफरेंस, इनफाइनाइट लेते हो. लेकिन अगर इसकी बात करो सिलेंडर की, तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा अपॉन r ना, या कांस्टेंट अपॉन r ना. तो इसका क्या होगा, रेफरेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस देखो रहे हो, ये 1 अपॉन r है ना, 1 अपॉन r है. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस करोगे तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. लेकिन अगर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, लॉग का फॉर्म में आ रहा है, तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, as you are going away from the cylinder your electric field is decreasing, but as you are going away from the cylinder your potential is increasing, and potential is infinite at your infinite distance. क्लियर. अपना कंसेप्ट के रेफरेंस ऐसे चूज करना है कि पोटेंशियल क्या होगा 0, और रेफरेंस पोटेंशियल 0 कब होगा, जब फोर्स 0 होगा. तो ये दोनों में क्या है कि 1 अपॉन r स्क्वायर है, यहाँ 1 अपॉन r स्क्वायर, r इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 रहेगा. लेकिन इसके केस में क्या होगा, सिलेंडर के केस में पोटेंशियल इनफाइनाइट पे क्या है बाबू, वेरी लार्ज है, इनफाइनाइट है. तो जिस रेफरेंस को तुम चूज करो उसका पोटेंशियल ही बहुत ज्यादा है, और बाकी किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही पोटेंशियल आ रहा है ना. इसका मतलब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा ना. और किसकी हो जाएगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाला वेरी लार्ज है.
ये वाला वैल्यू, यानी इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर, जो कि रॉन्ग है ना, बिकॉज इफ यू आर चेंजिंग द पोजीशन योर पोटेंशियल शुड चेंज। इसका मतलब ये कि अपना जो पोटेंशियल होगा वो रेफरेंस, अपना जो रेफरेंस होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा, कहीं और जीरो और इनफाइनाइट के बीच में कहीं होगा जहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि वी कांट फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिलेंडर, वी विल ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस, वी विल ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस। आगे बात समझ, यू कांट फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिलेंडर बिकॉज रेफरेंस कहाँ लोगे, रेफरेंस में पता ही नहीं है, यहाँ भी जीरो पे रेफरेंस नहीं होगा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, so you can't find the potential at a point due to cylinder, you will always find the potential difference, clear, potential difference। और उसके बाद potential difference find करते रेफरेंस क्या लोगे, इनफाइनाइट से थोड़ा सा इधर कहीं लो, अगर ये इनफाइनाइट है बाबू तो बीच में कहीं पॉइंट ए लो यहाँ, या पॉइंट इनफाइनाइट, द डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट जहाँ तो रेफरेंस यूज करो एंड द सिलेंडर शुड बी finite, not infinite. Is that okay? Is that okay? So this rule is not valid for cylinder. You can't find potential at any point due to cylinder. You will always find the potential difference. Also, you can't take reference at infinity. You will have to take reference at a point which is at a finite distance from the cylinder. So वो रूल हम करके करेंगे, आंसर हमारा आएगा। तो इसलिए बोला मैंने कि ये रूल वैलिड इसके लिए नहीं है। यहाँ डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल फॉर सिलेंडर यू कांट टेल्स दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ड्यू टू सिलेंडर। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। क्लियर? तो लिखो, आई बात समझिए। क्लियर हुआ तो थंब अप करो, क्लियर हुआ तो थंब अप करो। क्लियर? बाकी जगह रेफरेंस चूज करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहां फोर्स जीरो और पोटेंशियल जीरो, तो कभी आर पे जीरो होता है या इनफाइनाइट पे जीरो होता है, लेकिन सिलेंडर में केस क्या थोड़ा स्पेशल है। क्लियर? वो सारे रूल्स यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। चलो करो बेटे, तो कर लिया बाबू, सबने कर लिया? किसी को कोई डाउट? क्लियर? सो क्लियर, हमने ये आइडिया लगाया कि फॉर सिलेंडर यू कांट चूज और यू कांट टेक इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस, नहीं, you have to choose a reference at a finite distance from the cylinder, and for cylinder you can't find the potential at any point, you will always have to find potential difference. इधर ओके, इधर ओके, क्योंकि उसका ऐसा रेफरेंस ढूंढना बहुत मुश्किल काम है जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर? रेफरेंस ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, खुश रहेंगे। And the same rule is also valid for solid cylinder. सॉलिड ये कैसे भी क्या होगा, वही होगा। क्लियर? सॉलिड कैसे भी वही होगा, तो ये लिख लोगे। This is a cylinder, radius is r, this is axis of cylinder. Clear? And that is point P. Clear? So this is the point P, and we will choose a reference A. So this is your reference. Clear? You can choose a reference of your choice. यही बताया था, you can choose a reference of your choice. बट जनरली पीपल एज्यूम इन्फिनिटी एंड आर एज ए रेफरेंस। ये भी बोल रही थी, सारी बातें बताई हैं, मैं बैकआउट नहीं कर सकता कुछ भी, है ना, जो बोला है वही अभी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बोल रहा आपने तो बैकआउट कर दिया बोल के, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सारी चीजें मैं बताया था, है ना। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है और भी जगह दे रखा है, रेफरेंस कुछ और लेके करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन है पोटेंशियल का, देखना एक्सरसाइज में, दैट इज ए वेरी प्रीटी क्वेश्चन, जाकर देखना उसको। सो व्हाट ए इज ए रेफरेंस पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड, क्लियर, एंड मींस देयर इज ए वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 1 coulomb of charge from point A to point P will be the potential difference between point A and B ना। तो आप क्या लिखेंगे, you are moving from A to P, तो होगा Vp minus of Va which is delta V। We can't find potential, अब potential difference यूज करोगे। क्लियर? बिकॉज पोटेंशियल इसका जीरो नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। क्लियर? कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये रेफरेंस है इसका पोटेंशियल जीरो, ऐसा नहीं। वी आर एज्यूमिंग रेफरेंस। क्लियर? इसका पोटेंशियल जीरो है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है।
हमें मालूम ही नहीं, कोई दिक्कत क्योंकि डिफरेंस भी फाइंड करना है तो इनफाइनाइट लेके थोड़ी करोगे यार, क्योंकि इनफाइनाइट उसका क्या पोटेंशियल हमेशा इनफाइनाइट है, तो उससे किसी भी नंबर पर सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, ऑलरेडी इनफाइनाइट ही होगा ना, तो यू कांट फाइंड पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग इनफाइनाइट एज रेफरेंस। क्लियर? सो पोटेंशियल फाइंड करना है या पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू चूज ए रेफरेंस व्हिच इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सिलेंडर। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया है रेफरेंस, और पॉइंट पे तुमने आना होगा क्या, अब अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr एंड a2 p, इधर हो जाएगा क्या है, माइनस इंटीग्रेशन e dr a2 p which is equal to integration a2 p and lambda upon 2 pi epsilon naught r dr which is equal to v p minus of va and which is equal to what, minus lambda upon 2 pi epsilon naught r, 2 pi epsilon naught r, बोलो 1 upon r dr, so what, lambda minus lambda upon 2 pi epsilon and log of r and a2 p, a2 p मतलब r-a-r-p, clear? so a2 p इधर ओके, so what, minus lambda upon 2 pi epsilon naught and log of p minus log of a, इधर ओके, clear? so what, minus lambda upon 2 pi epsilon naught log of a minus log of p, so this is the potential difference, clear? so what, this is the work and is bringing a 1 coulomb of charge from a to point p, clear? a अब देखो बाबू यहाँ ऐसे लिखो, कंफ्यूज होगा, lambda upon 2 pi epsilon naught log of r a minus log of r p, इधर ओके, so this is r a and this is sorry r p and this is r a, इधर ओके, so this is the potential difference having when point the 2 point lie outside the cylinder, outside है, यानी दोनों पॉइंट क्या आउटसाइड सिलेंडर है, फिर हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट पी कहाँ होगा, सरफेस होगा तो कितना पोटेंशियल होगा, और पॉइंट पी अंदर होगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विल फाइंड दैट, क्लियर? लिखो, समझ आया? तो कर लिया बाबू, कर लिया सबने, गुड। So now we'll find potential difference when point is on the surface and then inside. आज कितने आए टोटल? तो this is a point P, this is a point A, and radius is r. So what? Vp minus of Va is equal to minus infinite a2 p e dot dr, which is equal to minus a2 p lambda upon 2 pi epsilon naught r dr, and this is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon and a2 p 1 upon r dr. This is minus lambda upon 2 pi epsilon naught log of r a2 p, this is vp minus of va is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon log of p minus log of a, this is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught log of a minus log of p. And so what, lambda upon 2 pi epsilon naught r a minus of r, because this is r a and this is r na, in the radius of the cylinder, so this is the potential difference when the point is on the surface, this is the potential difference, when point P is on the surface, reference is outside. So here now for inside, V inside.
So when point P lie inside the surface, करो इसको लिखो जल्दी लिखो बताओ। यही तो टैलेंट है मेरे में, लगा पारे में लगा पार, यही तो टैलेंट है। पूरा डिस्टेंस एक्सिस से क्लियर कर लिया सबने? करो इरेज, जल्दी करो। कर लिया बाबू? डन? बोलो किया? कोई नहीं बोलेगा। चलो जल्दी करो। ये दिख नहीं रहा है क्या? तो कुछ बोलोगे हाँ ना, लिखा कि नहीं लिखा? मजे ले रहे हो आप तो लोग। अरे 8-10 जने हो, कोई तो बोलो कि हो गया, मीटिंग ही होगा। तो लिख लिया बाबू, लिख लिया? लिख लिया हो तो थंब अप करो यार, जल्दी से शुरू करें आगे। So now we'll find the potential difference when point is inside. Point is inside. This is very important. ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। Clear? So what? This is the potential. देखो याद रखेंगे ये। This is the potential when point P is on the surface. Now there is a point Q. There is a point Q inside the surface. यहाँ पर एक point Q है। Let us say this is R Q. Clear? बड़ा सा बना दूं? नहीं दिख रहा? नहीं, मजा आएगा बड़ा सा। मिटा के फिर लिखने में मजा है ना? ऐसे नहीं है। So this is your cylinder. एक ही चीज को बार-बार करोगे तो यही याद हो जाएगा। तो बार-बार इसलिए करवाता हूँ कि इमेज बन जाए। तो R यहाँ पर पॉइंट P है बेटे, और ये पॉइंट A है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब पॉइंट अंदर है एक Q, सो हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी V2 माइनस V। एक काम करना है ना, यानी कि A से Q पर जाने पर जितना वाटर होगा एक कूलम को ले जाने का, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड Q ना। अब तो होता क्या, याद करो दिन जब मैं बता था कि दिस इज ए होल स्फीयर, then electric field inside the whole sphere will be 0. So potential मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो what potential at A is equal to potential of B is equal to potential at surface. यही है ना बाबू? Because E is equal to 0 inside the surface, यानी कि यहाँ से चार्ज को अंदर ले आओगे, you are not doing any work. So if you are not doing any work, मतलब potential at each and every point is same ना, ये बताया था। Similar, if this is a hollow, this is a hollow one. यूनिट क्या आता है hollow? So if this is a hollow one, there is no any charge inside the surface. So E inside the surface will be 0. So अगर surface से किसी चार्ज को अंदर लेके आते हो, तो work done by you is 0, यानी surface से इधर चार्ज नहीं ले आओगे तो work done क्या होगा? 0। तो surface पे एक पॉइंट ले लो A और एक पॉइंट ले लो B. So what? VB minus VA is equal to W upon Q, W upon Q, एक कूलम चार्ज को, which is equal to 0। इसका मतलब VB is equal to VA। इसका मतलब जो पोटेंशियल पॉइंट A पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा बाबू? पॉइंट B पे होगा ना। मींस पोटेंशियल एट पॉइंट A is equal to potential at point B, because in moving a charge from A to B you are not doing any work. So if you are not doing any work, means there is no any change in potential energy. The potential at the 2 point is same, potential difference 0, तो log done is 0। इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। So therefore think about this. This is VQ minus VA, or this is VP minus VA, and from this
explanation you can say that potential at point P is equal to potential at point Q ना, इसका मतलब क्या होगा कि V2 minus VA is equal to VP minus VA which is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught log of RA minus log of और आर ये बात समझ, यानी कि चार्ज को ए से तुम पी पे लाओ या इनसाइड द सरफेस जाओ, योर वाटर विल बी सेम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। क्लियर? चार्ज को यहां से तुम सरफेस पर रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। क्लियर? योर या यहां से उठा, यहां से लेके आओ, फिर यहां से घुमाते घुमाते फिर यहां पे लेके आओ, वाटर क्या होगा? जीरो। सॉरी पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि यहां से यहां लेके आओ या यहां लेके आओ, यहां वाटर विल बी सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। आई बात समझ तो थंब को ऑफ करो, ये चीजें क्लियर हो तो सबको ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लियर? तो जल्दी लिखो। कर लिया बाबू, कर लिया तो थंब को ऑफ करो। गुड। तो नाउ ये तो हो गया बाबू, अब कुछ और की चीजें आप सॉलिड का दिखाता हूँ। सॉलिड का अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा व्हेन आई विल डिस्कस कैपेसिटर का सारा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, तो वहां फिर नहीं करोगे तो फिर पूछना तो बनता है। तो बाबू सॉलिड का देख लो। सॉलिड सिलेंडर, तो अब इसमें क्या होगा बाबू? अब इसमें रो हो जाएगा, रो इज द चार्ज डेंसिटी, रो इज द चार्ज डेंसिटी। क्लियर? सॉलिड सिलेंडर क्लियर? यहाँ पर कोई पॉइंट है बाबू। क्लियर? तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अभी ई क्या होगा? सॉलिड सिलेंडर का ई एट अ पॉइंट आउटसाइड, दिस इज एक्सिस। क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट P फॉर सॉलिड सिलेंडर एंड द पॉइंट P इज आउटसाइड, बताया था। हम मुझे खुद याद नहीं है, तुम लोग बताओ तुम्हें बोल। रो रेडियस स्क्वायर अपॉन 2 एक्सटेंड, यही ना? यही ना? बोल बेटा, यही ना? अब बाकी के लोग डूब मरो। So rho r square upon 2 epsilon is equal to rho r square 2 epsilon r। अब सही दिख रहा है, अब सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अब सुंदर दिख रहा है। रो r square 2 epsilon से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाबू। पोटेंशियल फाइंड करो, मतलब तो वही होगा। अगर ये डिफरेंशियल है तो कि Vp इक्वल टू माइनस V2 r e डॉट dr, तो अभी क्या हो जाएगा? फिर वही इनफाइनाइट वाला केस हो जाएगा। आर बस इनफाइनाइट वाला केस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि दिस इज यू कांट फाइंड यूजिंग दिस, तो फिर ये करना पड़ेगा, क्या डिफरेंस लेना पड़ेगा? Vp माइनस ऑफ Va, यानी कि इधर कोई पॉइंट ए लोगे, मान लो यहाँ से पॉइंट ए लोगे और फिर यहाँ से कहाँ लोगे बेटा? हाँ, ए टू P E डॉट dr r बस माइनस एन, तब करोगे हो जाएगा। सेम क्लियर? होलो वाला ही केस लगेगा, कोई दिक्कत? क्लियर? ऑन द सरफेस सेम। चेंज कहाँ होगा? दिक्कत कहाँ होगी? इनसाइड। दिक्कत कहाँ होगी? इनसाइड में क्या हो जाएगा बेटा? इनसाइड में क्या होगा? ये हो गया, क्लियर हो जाएगा, कर लोगे ना? क्लियर? तो फॉर होलो एंड फॉर सॉलिड ऑन द सरफेस एंड आउट द सरफेस रिजल्ट इज सेम, प्रोसीजर इज सेम। क्लियर? अंदर में क्या होगा? अंदर में क्या था कि इसके केस में क्या? होलो केस में इनसाइड द पोटेंशियल एंड ऑन द सरफेस पोटेंशियल सेम ना? इनसाइड का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इसके केस में क्या है? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क इज नॉट जीरो ना, तो पोटेंशियल अंदर में और बाहर में क्या अलग होगा। तो ये वाला यहाँ रूल अप्लाई करेंगे। मान लो ये वाला यूज करेंगे, मान लो कि ये लिखो, पहले लिखो, ये घर पे कर लेना यार, घर पे कर लेना।
का रिजल्ट विल बी सेम, क्योंकि देखो 1/r² यहाँ पे डिपेंडेंस आ गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ r आ जाएगा, फिर वही सिनेरियो आएगा। क्लियर, वही सिनेरियो आएगा। चलो करो जल्दी। सो ऑन द सरफेस और फलाना डिमा का करके कर लेना, मैं इनसाइड वाला करा रहा हूं। कर लिया, कर लिया बाबू, कर लिया। दिस इज सो इजी, कर लिया ना। क्लियर। अब इनसाइड वाला बता देता हूँ, इजी है, कर लोगे सर, मैं कराऊँ तो नहीं, कर लेना, सब इजी है। कंसेप्ट सीख जाओ, उतना तो होशियार हो गए हो। तो देखो बाबू, पॉइंट P, क्लियर, एंड यहाँ से A से पॉइंट P आओगे तो क्या होगा, वहाँ पर देख लो होगा क्या, VA VB VP माइनस VA इक्वल टू माइनस A2, सॉरी RA मान लो इसको, RA इसको RP, तो RA2 RP2 डॉट D। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड, आर डिपेंडेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, बाहर पर अलग डिपेंडेंस है और अंदर पर, इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या होगा माइनस RA2, पहले यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ और फिर यहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, RP डॉट DR, जो कि हमने सोलिड स्टार में किया था, और इंटीग्रेट कर लेना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डाल देना, यहाँ साइड वाला इंटीग्रेट करके सुंदर से रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे, क्लियर। सो दिस इज आई एम नॉट डूइंग हियर, है ना, ये कर लोगे, इतना मैं करा रहा फिर तो तुम क्या करोगे, क्लियर। डायरेक्ट कर दिया, अब कर लेना। चलो लिखो, होमवर्क ये करना। तो कर लिया बाबू, घर पे करोगे ना, करके भेजोगे ना आंसर, बोलो नहीं भेजोगे, कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड। सो बाबू अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो है ना, कर लेते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में। So बाबू मान लो दिस इज ए होल स्क्वायर ऑफ रेडियस r1 and there are other whole square of radius r2। इसका चार्ट एसिडिटी सिग्मा प्लस है, इसका चार्ट एसिडिटी सिग्मा माइनस है। अगर the point P outside, clear। So what is the electric field at point P and what is the potential at point P? कौन बताएगा? सर नहीं दिख रहा। मेरे चेंज अब दिख रहा बाबू। अब चलो क्वेश्चन में ग्रुप पे भेज देता हूँ, क्वेश्चन में ग्रुप पे फोटो खींच के भेज देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि एक होलो स्क्वायर है छोटा सा और उसके बाद एक बड़ा होलो स्क्वायर है, दे आर कंसेंट्रिक, क्लियर। और इसके मान लो Q1 चार्ज है माइनस, इस पे प्लस Q चार्ज है, यानी कि अंदर वाले पे माइनस Q और बाहर पे प्लस Q। और एक पॉइंट P है जो कि आउटसाइड है, दोनों स्क्वायर से दूर है। और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा वो बताओ। क्वेश्चन भेज बेटा, फोटो भेज रहा हूँ, करो देखो। अब कौन बताएगा बेटे, कौन बताएगा? ये कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। आर ले लो, आर ले लो। अब बताओ, सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लो। और the two are the hollow and they are concentric। एक पे चार्ज माइनस Q, एक पे चार्ज प्लस Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट P? पढ़ नहीं रहे हो बेटा तुम लोग, पढ़ नहीं रहे हो। पेपर में हालत खराब कर दूंगा मैं। और तुम तो बोल भी नहीं सकते कि टीचर ने नहीं पढ़ा है। सामने कॉपी दिखा दूंगा मैं, एक एक चीज याद है, वीडियो भी दिखा दूंगा मैं, फुल प्रूफ है मेरे पास, वीडियो भी है सारा। तो तुम बोल भी नहीं सकते हो। पेरेंट्स की तरफ से भी पढ़ेगा और मेरी तरफ से भी पढ़ेगा।
दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर है, ये होलो है, इस पे है लैम्डा चार्ज डेंसिटी। अब दूसरा सिलेंडर है, अब सेम लेंथ, दूसरा सिलेंडर है, दे आर इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है और दूसरा भी क्या है वो इनफाइनाइट है। क्लियर, और दोनों होलो है। क्लियर, एक बड़ा है एक छोटा है, इस पे लैम्डा है प्लस, इस पे लैम्डा है माइनस, यानी बड़े वाले पे माइनस है चार्ज डेंसिटी और दूसरे वाले पे प्लस है। एक पॉइंट पी है आउटसाइड, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट पॉइंट पी और पोटेंशियल बताओ एट पॉइंट पी। They are the hollow one. They are concentric and they are hollow one and they are infinitely large. एक पे प्लस चार्ज डेंसिटी है, एक पे माइनस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, प्लस एंड माइनस। क्लियर, और पॉइंट पी आउटसाइड है। क्लियर, एक का रेडियस मान लो r1 है और दूसरे का r2 है और पॉइंट पी का डिस्टेंस r है एक्सिस से। क्या लेंथ इज इनफाइनाइट, लेंथ इज इनफाइनाइट। तो दिस इज योर होमवर्क। क्लियर, कल सुनाऊंगा, आज नहीं सुनाऊंगा, करो है ना। वैसे क्वेश्चन 30 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आंसर ही बता देता हूँ। EP will be 0 and VP will be 0 also। यहाँ और यहाँ भी होगा, EP will be 0 और VP will be 0।